Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history. Class 11th history, chapter 9, Industrial Revolution. Dear student, if you have remember, we have studied various point and the paragraphs which is given in this book. Once, when I was reading this chapter, a question came in my mind that the industrial revolution term, which was used by the different scholars, intellectuals, for the development of industrialization which happened in Britain, we can consider it as an industrial revolution. What happened there during 1718 to 1850? If we will consider it, then we have to also accept it that before 1780 there were no economical development or industrializations that was established in Britain. Production level also that was not in the better form than those era which was called the industrialization era 1780 to 1850. My dear student, what I want to tell you that you should also think about that कि क्या इस काल को औद्योगिक क्रांति कहना कहाँ तक सही होगा। क्या 1780 और 1850 में ही इतने सारे चेंजेस आए ब्रिटेन में? केवल उसी समय इस तरह के तमाम सारी चीज़ों का विकास दिखाई दिया ब्रिटेन में? I hope you are getting what I want to tell you. चलिए, we will discuss that point in our next paragraph. I think this point also given in your book. I hope you have remember we discussed on that point. But in the continuation of this chapter, when we will reach that point, we will discuss the very different way. Okay, let us come and try to understand the topic which was discussing by me in your previous class. Okay, so let's start with chapter Industrial Revolution. Chapter Industrial Revolution 1780 to 1850. What we discuss the protest movement. We will try to understand the protest movement. हम protest movement को समझने का प्रयास करेंगे. अब इसको समझना है हमें. हमने कल आपको कई सारे पॉइंट्स बताए थे. आई होप कि आपको याद होगा. मैं फिर आपको इन पॉइंट्स पे आपको ले चलता हूँ. फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. मैंने कल आपसे 2-3 बातों पे बात की थी. अगर मैं सीधे चलूँ तो एक की बात मैंने की थी, फर्स्ट की बात की थी फ्रेंच रेवोल्यूशन, सेकेंड की बात की थी मैंने कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल, बुक थी उनकी
1849 टू 51 के आसपास आई थी ये। और थर्ड की मैंने बात की थी कॉम्बिनेशन एक्ट, फोर्थ की बात की थी हमने बैटल बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। सेवनटीन 1995 ये कब आया था? आई थिंक ये भी करीब वही डेट आसपास है 1795 की। तो ये चार घटनाएं तो प्राइम रीजन है इसके। इनके अलावा भी कुछ रीजन्स आप काउंट करा सकते हैं। फिफ्थ, वीमेन, चिल्ड्रेन एंड मेन वर्कर्स। मेन वर्कर्स प्रॉब्लम्स, मेन वर्कर्स प्रॉब्लम्स कर लीजिए, बहुत सारी दिक्कतें थी। और जो सिक्स है वो था क्या? कीमतों में बढ़ा। आई मीन टू से दैट कि जब ट्रेड क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ, तो वस्तुओं की कीमत बढ़ी। रेज, आई मीन टू से प्राइसेस, प्राइस लिखे तो ज्यादा अच्छा है। प्राइस वर इंक्रीजेस। अब इतनी चीजों को आप जोड़ लीजिए। खैर थोड़ी देर के लिए प्राइस वर इंक्रीजेस हटा देते हैं और लिख देते हैं पॉलिटिकली सिस्टम दैट वाज नॉट इन फेवर ऑफ दैट। पॉलिटिकल सिस्टम इसके अनुरूप नहीं था। इन पॉइंट्स के आधार पे हम प्रोटेस्ट मूवमेंट को समझने का प्रयास करेंगे। डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव रिमेंबर कि हम लोगों ने बातें की थी और बात करते वक्त हम लोगों ने कहा था कि किस तरीके से प्रोटेस्ट मूवमेंट हुआ। प्रोटेस्ट मूवमेंट के कारण क्या क्या थे? Points that was given by me in your last class, and also I wrote here, मैंने इसको लिखा। अब इन चीजों को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। हम लोगों ने कहा था, हम लोगों ने पढ़ा था, what we read that during industrialization 1780 to 1850, 1780 that was the starting time of the industrialization in Britain, and after 9 years a revolution happened in France that was called the French Revolution. It was the great awareness in workers that we are producing the huge amount of production in the factory and industry, but our condition is not going to be good. अच्छा नहीं हो रहा है। What was the reason behind that? When they look after that, so dear student, it is very clear कि हम लोगों ने वो सारे कारणों पे बात कर ली। अब उनके आगे हम देखते हैं कि क्या हुआ। आइए आपके बुक से उन चीजों को क्लियर करते हैं। आई होप कि सभी के पास आपकी बुक होगी, सभी के पास हिस्ट्री की बुक होगी। आई थिंक ये हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट है। हम रिवाइज कर रहे हैं अपने इस पार्ट को अगेन एंड अगेन। आई थिंक मुझे लगता है कि ये थर्ड टाइम है कि जब हम इसको फिर रिवाइज कर रहे हैं, तो सभी के पास होगी और ये आपका तैयार भी होना चाहिए। देयर शुड बी नो एक्सक्यूजेस
इबन बायू की ये नहीं आए, वो तैयार नहीं है, हमने ये नहीं पढ़ा, इस तरह की बातें। ओके, द अर्ली डिकेड्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन coincided with the spread of new political ideas pointed by the French Revolution 1789 to 94. The movements for liberty, equality, and fraternity showed the possibilities of the collective mass action, both in creating the democratic institution like the French Parliamentary Assembly of the 1790s and checking the vast hardship of war by controlling the prices of necessity like bread in England. In England, political protest against the harsh working condition in factories kept increasing and the working population agitated to be given the right to vote. The government reacted by the repression and by a new law that denied people the right to protest. My dear student, it was the main reason of the French Revolution that the workers of the Britain, they asked for the voting rights to the British government. They also blamed the British government for increasing the necessity goods prices like bread and other things. तो ये सारी चीजें एक परिस्थितियों को इंक्रीज कर रही थी, बढ़ा रही थी। डियर स्टूडेंट, द पार्लियामेंट in 1795 passed the Two Combination Act, which made it legal to enact, legal to incite the people by speech or writing to hatred or contempt of the king, constitution or government, and banned the unauthorized public meeting of over 50 persons. Protest nonetheless continued against old corruption. This term was used for privileges linked to the monarchy and the parliament. Member of the parliament, the landowners, manufacturers and professionals were opposed to giving the working population the right to vote. They supported the crown law. They supported the corn law. Yes, that point also you can mention here. The corn law. अभी कॉर्न लॉ क्या थी और उसको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। कॉर्न लॉ ये थी कि तब तक बाहर से कोई वस्तु ना मंगाई जाए कमी को पूरा करने के लिए, जब तक कि रेट ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग ना हो जाए। माय डियर स्टूडेंट, वी विल डिस्कस दिस लॉ, but let me complete this paragraph. That supported the corn law, which prevented the import of the cheaper food until prices in Britain had risen to the certain level. Prices of the necessity goods that had risen to the certain level in Britain, whenever till that time the grains, the necessity goods that would not be imported from the other countries, that is called. It was also promoted by
बाय हुम, किसके द्वारा? तो कहता है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिश मोनार्की के द्वारा। As workers flooded town and factories, they expressed their anger and frustration in numerous forms of protest. There were bread of food riots, जो थे, कहता है कि फूड राइट्स थ्रू आउट द कंट्री फ्रॉम द 1790s ऑनवर्ड्स, पूरे ब्रिटेन में दंगे हुए खाने की चीजों को लेकर के। ब्रेड वॉज द स्टेपल आइटम इन द डाइट ऑफ द पुअर एंड इट्स प्राइस गवर्न्ड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टॉक्स ऑफ ब्रेड वर सीज्ड and sold at high price that was affordable and the morality correct rather than the high prices charged by the profit hunger traders. Such riots were particularly frequent in the worst year of the war, 1795, but they continued until the 1840s. My dear student, it is very important information कि जब नेसेसिटी गुड्स की प्राइस तेजी से बढ़ी, वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी, वस्तुओं की कीमत बढ़ी, और फिर इस कीमत के बढ़ने के साथ साथ अब केवल 1795 का ही डेट नहीं था जब जब फ्रांस और इंग्लैंड में युद्ध हुआ। फ्रांस और इंग्लैंड में युद्ध के कारण व्यापार अव्यवस्थित हुआ, अनस्टेबल हुआ, वस्तुओं की कीमत बढ़ी, लेकिन जब कीमत बढ़ गई तो वो युद्ध के बाद समाप्त नहीं बल्कि 1840 के डिकेड तक कंटिन्यू बनी रही। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग माय डियर स्टूडेंट, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो प्राइस रोज कर रही थी, जो वृद्धि हो रही थी कीमत में, उसको व्यापारियों ने क्या किया, अपने पास वस्तुओं को डंप किया और धीरे धीरे वस्तुओं को मार्केट में निकालते थे। दैट वॉज द वेरी बैड कंडीशन, वर्स्ट कंडीशन फॉर द वर्कर्स बिकॉज दे नॉट अफोर्ड टू परचेज। बढ़ी हुई कीमतों पे वो खाने की चीजें नहीं खरीद सकते थे, और ये परिस्थितियां वर्कर्स के लिए क्या थी, बेहद हानिकारक थी। इसीलिए पूरे ब्रिटेन में जगह जगह खाने को लेकर के दंगे हुए। ओके माय डियर स्टूडेंट, another causes of the hardship was the process known as enclosure. Enclosure, चलिए एक पॉइंट और ले लीजिए, enclosure को भी यहां जोड़ लीजिए, 5, 6 and 7. enclosure क्या था भाई? जो इनक्लोजर क्या था? ऐसी कौन सी चीज थी इनक्लोजर की? अब इनक्लोजर पे बात करिए। कहता है another causes of the hardship was the process known as enclosure, by which from the 1770 the hundreds of small farms had been merged into the large ones of powerful landlords. Poor rural families affected by this had sought industrial work, but the introduction of machines in the cotton industry threw thousands of the handlooms weaver out of work and into poverty. कहता है कि कॉटन इंडस्ट्री में जब मशीन आई तो हजारों हजार वर्कर्स को उसने क्या किया, बाहर फेंक दिया, जॉबलेस कर दिया। और जब वो जॉबलेस हुए, इनक्लोजर्स ने छोटी छोटी फार्मिंग लैंड को मर्ज करके बड़े फार्म लैंड में बना दिया। तो एक तरफ तो उनकी जमीनें उनसे छिन रही थी, दूसरी तरफ ये वर्कर्स अपने फैक्ट्री से मशीनों के आ जाने के कारण निकाल दिए जा रहे थे। तो इनके ऊपर दोहरा मार पड़ा।
ये जॉबलेस हुए, और जॉबलेस के साथ साथ ये लोग क्या हुए, ये लोग एकदम मिजरेबल कंडीशन में आ गए, दयनीय स्थिति में आ गए। इन द डिप्रेशन इन लंकाशायर, cotton weavers destroyed the power looms which they believed had destroyed their livelihood. How strange. Of course, the workers, if they were kicked out from the factories when the machine introduced, so what they did in that condition? No doubt to say that they become rebellion against the mechanization of the industry. They against the machines. So that's why they taken the very wrong step. They broke in the machines. They क्या किया उन्होंने? आग लगा दी, मशीनों को तोड़ दिया। इस तरह के तमाम सारे कार्य वो करने लगे। My dear student, I hope you are getting understand that that was the major problem. That was the very, very difficult situation for them. What they did in that condition? कहता है, so that's why there was also resistance to the introduction also took place in the Leicestershire and Derbyshire. In Yorkshire, the shearing frames were destroyed by the croppers who had traditionally sheared sheep by hand. In the period of 1830s, the farm laborers found their jobs threatened by the new threshing machines that spreaded the grain from the husk, and the writers smashed these machines. 9 of them were hanged, and 1450 were sent to Australia as convicts. My dear student, it's a very difficult situation for the workers. Workers, they become rebellion against the industrialization. Why? Because introducing of machines, they were jobless, they were kicked out from the work, I mean to say that machines and factory. What they did in that condition, even the government taking the very brutal step against them. They were hanged, and also they were exiled from Britain to Australia. So, industrialists, they were success. But the workers, even their demand that was suppressed by government and industrialists. But now that time, industrialists and government, they felt that we should reform in law. We should, government, I think we can now say government, because the one party in Britain who felt that the condition of the workers is not so good, so that's why they become rebellion. If we will take some step in favor of them, so we can change the scenario which is happening nowadays in England. तो जो इंग्लैंड में हो रहा था उसके लिए एक पार्टी ने बात की। चलिए इन चीज़ों को फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ चलते चलते लास्ट क्लास में। अभी आप उन चीज़ों को देखिए जो हमने पढ़ा है। हमने आपसे कहा, हमने आपको बताया था कि फ्रांसीसी क्रांति हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी की बात आई। इन चीज़ों ने वर्कर्स के अंदर अवेयरनेस बढ़ाया। 1719 के डिकेड्स में जो फ्रांसीसी पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा सकती थी, बनाई गई। ब्रेड जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए और युद्ध की कठिनाइयों को भी रोकने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया। इंग्लैंड में फैक्ट्रियों में काम करने की कठोर परिस्थितियों के विरुद्ध राजनीतिक विरोध बढ़ता जा रहा था, और फिर वर्कर्स जो लोग थे वो वोटिंग राइट्स की भी डिमांड कर रहे थे। इसकी प्रतिक्रिया में सरकार ने रिप्रेसल एक्शन
और लॉ बना करके इनका विरोध प्रदर्शन रोकने का प्रयास किया। फिर हमने बात की कि इंग्लैंड का फ्रांस से लंबे समय से युद्ध चला आ रहा था। 1792 टू 1815 तक ये युद्ध चलता रहा। इंग्लैंड और यूरोप के बीच चलने वाला व्यापार जो ट्रेड था वो डिस्टर्ब हुआ। फैक्ट्रियों को मजबूरन बंद करना पड़ा। बेरोजगारी बढ़ती गई। नेसेसिटी गुड्स जो थे, ब्रेड, मीट, इनकी कीमत आवश्यकता से अधिक बढ़ गई। और ब्रिटेन की संसद ने इसी में 1795 में 2 कॉम्बिनेशन एक्ट पारित कर दिए। 2 कॉम्बिनेशन एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1795 एज आई डिस्कस यू इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस क्लास। माय डियर स्टूडेंट, इससे क्या हुआ कि अब कोई भी व्यक्ति सम्राट, संविधान, सरकार और सरकारी संस्थाओं के खिलाफ न लिख सकता था, न ही बोल सकता था। साथ ही साथ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कर दिया गया कि 50 से ज़्यादा के लोग एक जगह बैठ के भाषण नहीं दे सकते, स्पीच नहीं दे सकते, या कोई हेडेड स्पीच नहीं बोल सकते। आई मीन टू से दैट कि 50 से अधिक अनधिकृत जो सार्वजनिक बैठक थी उस पर रोक लगा दी गई। लेकिन ओल्ड करप्शन के विरुद्ध आंदोलन बराबर चलता रहा। ओल्ड करप्शन वर्ड का प्रयोग डेमोक्रेसी के लिए नहीं बल्कि मोनार्की के लिए किया गया था। ओल्ड करप्शन मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के लिए किया गया था। ओल्ड करप्शन राजतंत्र और संसद के संबंध के संदर्भ में किया गया था। संसद के सदस्य जिसमें भूस्वामी, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और कुछ जो लोग पेशेवर लोग थे वो शामिल थे, वो कामगारों को वोट का अधिकार दिए जाने के खिलाफ थे। और उन्होंने कॉर्न लॉज, अनाज के कानून का समर्थन किया। इस कानून के अंतर्गत विदेश में सस्ते अनाज का आयात पर रोक लगा दी गई जब तक कि ब्रिटेन में इन अनाजों की कीमत में एक स्वीकृत मानक तक वृद्धि न की जाए। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री में जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्हीं लोगों का बोलबाला था, तो इन लोगों ने इस चीज़ों पे क्या किया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि ब्रिटेन में तब तक कोई भी बाहर से अनाज नहीं आएगा जब तक अनाजों की कीमत एक निश्चित ऊंची स्तर पे फिक्स नहीं कर दी जाएगी जिससे उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट विच वी डिस्कस। और फिर क्या हुआ, फिर इन अनाजों की कीमतों में वृद्धि हुई। जैसे जैसे श्रमिकों की तादाद शहरों और कारखानों में बढ़ी, ये अपने गुस्से और हताशा को हर तरह के विरोध में प्रकट करने लगे। 1790 के डिकेड्स तक आते आते पूरे देश में रोटी के लिए, खाने के लिए दंगे हुए, राइट्स हुए। ब्रेड अथवा खाद्य दंगे के नाम से इनको जाना गया। गरीबी का मुख्य आहार ब्रेड ही था गरीबों का, और अगर ब्रेडों की कीमत बढ़ जाएगी तो क्या होगा। इनकी कीमत पर ही इनके रहन सहन का स्तर निर्भर करता था। ब्रेड के भंडारों पर कब्जा कर लिया गया और मुनाफाखोरों द्वारा लगाई गई ऊंची कीमतों से काफ़ी कम मूल्य में बेचा जाने लगा। आम आदमी के लिए वाजिब थी और नैतिक दृष्टि से भी सही था। ऐसे दंगे खासतौर पर युद्ध के बदतरीन वर्ष 1795 में बार बार हुए, लेकिन उनका सिलसिला 1840 के डिकेड्स तक चलता रहा। कहने के लिए 1795 का टाइम दंगे युद्ध समाप्त होने का टाइम था, लेकिन यह युद्ध चलने का टाइम था 1792 टू आई थिंक। अगर आप देखिए युद्ध की फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जो युद्ध हुआ 1792 टू 1815 के बीच, युद्ध के बाद भी वस्तुओं की कीमत बढ़ी। 1840 तक ये कीमत बढ़ती रही और ऐसी कंडीशंस जो कामगार वर्कर्स थे उनके फेवर में नहीं थी। परेशानी का एक कारण यह भी था जिसमें इंक्लूजर को डाला गया, बाड़ा पद्धति को डाला गया, चकबंदी जिसे कहते हैं, जिनके द्वारा 1770 के डिकेड्स में छोटे छोटे जो सैकड़ों फार्म थे वो शक्तिशाली जमींदारों के बड़े फार्मों में मिला दिए गए। इस पद्धति से बुरी तरह से प्रभावित हुए गरीब परिवार ने औद्योगिक काम देने की मांग की, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या हुआ, मशीनों के आ जाने के कारण बड़ी संख्या में वर्कर्स फैक्ट्रियों से निकाल दिए गए। तो फैक्ट्रियों से वो निकाले जा रहे थे, तो जब फैक्ट्रियों से निकाले जा रहे थे और उनकी ज़मीन भी बड़े जमींदारों की ज़मीनों में मिला दिए जा रहे थे, फार्म में
तो दोनों तरह से उनके ऊपर दोहरी मार पड़ी और वो विद्रोही हुए। हजारों की संख्या में वीवर्स जो थे वो बेरोजगार होकर गरीबी की मार झेलने को मजबूर हो गए, क्योंकि उनका जो करगा मशीनों का मुकाबला नहीं कर सकता था। और 70-90 की टिकट्स तक आते आते बुनकर लोगों ने अपनी न्यूनतम वैध मजदूरी की मांग करने लगे। संसद ने इस मांग को ठुकरा दिया। जब वे हड़ताल पे चले गए और जबरदस्ती उनको तो तितर बितर कर दिया गया, फोर्सली उनको इधर उधर कर दिया गया। हताश होकर के टेक्सटाइल जो वीवर्स थे उन्होंने लंका शहर में पावर लूम को नष्ट कर दिया, क्योंकि वे समझते थे कि इन बिजली के कार्गो ने उनकी रोजी रोटी छीन ली है। लेसेस्टर शायर, डर्बी शायर में भी खूब विरोध प्रदर्शन हुए। याक शायर में ऊन कतरने वालों ने ऊन कतरने के ढांचों शेयरिंग फ्रेम को तोड़ दिया। ये लोग परंपरागत रूप से अपने हाथों से भेड़ों की बाल की कटाई करते थे, लेकिन जब शेयरिंग फ्रेम आई तो मशीनों से भेड़ों की बालों की कटाई होने लगी। उनके वहां भी वो जॉबलेस हुए। ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं क्या कर रही थी, पूरी तरीके से वर्कर्स की कंडीशंस को ऐसी स्थिति में ला रही थी जिसमें वो सरवाइव ना कर सके। खेती में भूसी से दाना निकालने वाले जो मशीन थे, थ्रेसिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू हो गया। दंगाई ने मशीन को तोड़ डाला। परिणाम स्वरूप 9 राइटर्स को फांसी दे दी गई। जो 9 दंगाई थे उनको फांसी दे दी गई और 450 से ज़्यादा लोगों को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, इस पर हम लोगों ने बातें की। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि प्रोटेस्ट मूवमेंट तेजी से फैल रहा था और इसका परिणाम वर्कर्स के अगेंस्ट था। आज के लिए इतना ही। वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास आल्सो। सो गुड बाय एंड टेक केयर।